Hello students, welcome to the class of English literature. In today's session, we will study some words with a mummy, a short story by Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe was an American writer, poet and critic. He was born in Boston, Massachusetts in 1809. His tales of mystery and horror gave birth to modern detective story. He was nicknamed as father of detective story, as his imaginative storytelling was responsible for leading literary innovations. In 1827, he published his first book, Tamerlane and Other Poems. His major works include Araf, the narrative author of Arthur Golden Pym, Tales of Grotesque and Arabesque, and The Fall of the House of Usher. Now come to the story. Characters of the story. Some words with the mummy. First character is the narrator of the story. The narrator was unnamed. He was fond of Welsh rabbit. Next important character is Dr. Pononer. He got permission to examine the mummy. Asked the narrator to come examine the mummy with him and some others. Arthur Saber-Tash was the person who brought the mummy from Egypt. He was Pononer's cousin. Mr. Gildon. He helped examine the mummy, translated the Egyptian letters. Mr. Silk Buckingham also helped translate the Egyptian letters. And El Mysticio. El Mysticio was the mummy, the name of the mummy that the man brought to life. Theme of the story is mistake and ignorance. Setting. The most important part of this story is carried out in Dr. Pononer's house. The narrator, summary of the story, the narrator eats a very large amount of Welsh rabbit accompanied by brown stout. Stout means beer or wine, and then goes to bed for a night's sleep. However, he is soon awakened and taken to Dr. Pononer's home to witness the unwrapping of a mummy. Narrator है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि वेल्श रैबिट उसका फेवरेट होता है तो उसे खाता है एंड साथ में बियर पीता है, स्टाउट पीता है. उसके बाद में रात को सोने चला जाता है, लेकिन जल्द ही वो जाग जाता है क्योंकि डॉक्टर पोनोनर उसे अपने घर पे बुलाता है विटनेस करने के लिए. क्या विटनेस करने के लिए? अनरैपिंग ऑफ अ मम्मी, क्योंकि वो अनरैप कर रहे थे, मम्मी का एग्जामिनेशन कर रहे थे. They cut into the first sarcophagus. Sarcophagus मतलब ताबूत जिसके अंदर मम्मी को रखा गया था. Remove it and discover the mummy's name, El Mysticio. वो लोग ताबूत खोलते हैं, सार्कोफेगस खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि मम्मी का जो नाम है वो क्या था? El Mysticio. The second and the third sarcophagi are removed to reveal the body. दूसरी और तीसरी जो ताबूत है, अंदर वो रैप थी मम्मी 3 ताबूतों के अंदर, वो खोलते जाते हैं एक के बाद में एक. थर्ड के बाद में उन्हें वो जो बॉडी है उसकी मिलती है. प्लेस्ड इन अ पैपिरस शीथ. पैपिरस इज अ काइंड ऑफ वुड जिसके अंदर की उसे लपेटा गया था.
कवर्ड इन प्लास्टर, मम्मी को किस में, प्लास्टर, एक प्लास्टर जैसा होता है पदार्थ, उसके अंदर उसे लपेटा गया था। एंड डेकोरेटेड विद पेंटिंग एंड गोल्ड गिल्ट, डेकोरेट किया गया था, पेंट किया गया था। आफ्टर रिमूविंग दिस दे एग्जामिन द बॉडी, रिमूव करने के बाद में उन्होंने बॉडी का एग्जामिन किया। दे फाइंड इट टू बी इन एक्सेप्शनली गुड कंडीशन, उन्होंने देखा कि भी ये तो एक्सेप्शन था, क्योंकि ज़्यादातर जो बॉडी है मम्मी की वो ख़राब हो चुकी होती है इंसिजन से, चीर फाड़ से, लेकिन इसकी बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि इसे नॉर्मल तरीके से एम्बाल्म नहीं किया गया था। Although it does not seem to have been embalmed in the normal way as the skin is red, क्योंकि मम्मी की जो स्किन थी वो कैसी है, एकदम रेड दिख रही है। एंड देयर आर नो इंसिजन्स, और उस पर कोई भी चीर फाड़ के निशान नहीं है। द डॉक्टर लेज आउट इंस्ट्रूमेंट फॉर द डाइसेक्शन, डॉक्टर पोनोनर अपने इंस्ट्रूमेंट रखता है डाइसेक्शन के लिए, डाइसेक्शन करने जा रहा होता है उसका। बट द मैन सजेस्ट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन द मम्मी, लेकिन जो मैन थे वहाँ पे, नरेटर और अदर जो लोग थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाए। एंड दे बिगिन प्रिपरेशंस फॉर दिस एट वंस। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज द मम्मी टू अवेकन, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के झटकों से कि मम्मी जो है वो जाग जाती है। एंड कंडम द मैन फॉर देयर अब्यूज। द मैन मेक देयर अपोलॉजीज टू एल्मिस्टिक्यू, उन्होंने मम्मी का नाम क्या है, एल्मिस्टिक्यू से माफ़ी मांगी। एक्सप्लेन टू हिम वाई दे डाइसेक्ट मम्मीज एंड द साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ इट, उसे एक्सप्लेन करते कि वो उसका डाइसेक्शन क्यों कर रहे थे और उसकी क्या साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है। सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन एंड देयर अपोलॉजीज, एल्मिस्टिक्यू शेक्स हैंड्स विद द मैन, उनकी एक्सप्लेनेशन से मम्मी एल्मिस्टिक्यू सेटिस्फाई हो जाता है और उनसे हाथ मिलाता है। हु देन प्रोसीड टू पैच अप द डैमेज कॉज बाय देयर इंसिजन्स, और फिर जो मैन है सारे लग जाते हैं उसके बॉडी को पैचअप करने में, जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया था उसे इंसिजन से, चीर फाड़ से, उसे वो फिर से सही करते हैं। दे गैदर अ प्रॉपर क्लोथ्स फॉर एल्मिस्टिक्यू, एल्मिस्टिक्यू के लिए वो प्रॉपर क्लोथ्स लेके आते हैं। एंड सिट डाउन फॉर सिगार्स एंड वाइन। एल्मिस्टिक्यू एक्सप्लेन हाउ ही केम टू बी अ मम्मी, एल्मिस्टिक्यू ने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो मम्मी बना। एंशिएंट इजिप्शियंस हैड अ सिग्निफिकेंटली लॉन्गर लाइफ स्पैन देन मॉडर्न मैन, एंशिएंट इजिप्शियन का बहुत लॉन्गर लाइफ स्पैन होता था मॉडर्न मैन की तुलना में, अबाउट 1000 ईयर्स। दे वर ऑल्सो एबल टू बी एम्बाल्म्ड, और वो अपनी बॉडी को एम्बाल्म भी कर सकते थे। दिस प्रोसेस अरेस्टेड द बॉडीली फंक्शंस, ये प्रोसेस जो है अरेस्ट कर लेता है बॉडीली फंक्शंस को, अलाउइंग देम टू स्लीप, कि भी सारे जो फंक्शंस है बॉडी के वो सो जाते हैं थ्रू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई सालों तक, ओनली टू राइज एंड गो ऑन विद देयर लाइफ सेंचुरीज लेटर। एल्मिस्टिक्यू अगेन chastises the man for their ignorance of Egyptian history, इजिप्शियन हिस्ट्री से फेमिलियर कराता है एल्मिस्टिक्यू सब लोगों को। He then explains that throughout time man has always been monotheistic. The pagan gods were symbols of the various aspects of the one true God. उसने बताया कि मैन जो था वो लंबे समय से क्या था, मोनोथेस्टिक था, एक ही रिलीजन में विश्वास करने वाला। द मैन आस्क हिम एज ही इज ओवर 5000 ईयर्स ओल्ड, लोगों ने कहा कि तुम तो 5000 साल पुराने हो, बूढ़े हो। इफ ही नोज एनीथिंग अबाउट हाउ द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, क्या तुम जानते हो कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था 10,000 ईयर्स अगो। Elmisticue responds that no one during his time entertained the fantasy that the universe was ever created. Elmisticue ने कहा कि भी मेरे टाइम पे कोई नहीं जानता था यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, कोई ऐसे सोचता ही नहीं था कि यूनिवर्स क्रिएट भी हुआ था क्या, बट दैट इट ऑलवेज एग्जिस्टेड। वो सोचते थे कि ये हमेशा से यूनिवर्स ऐसा ही था। Although some believe that humans were created by spontaneous generation in a polygenic manner in different places,
भी जनरेशन टू जनरेशन जो ह्यूमंस है वो क्रिएट हुए. फाइनली वन ऑफ द मैन आस्क्स if the mummy was familiar with the manufacture of either Ponnonner's lozenges or Brandreth's pills. एक व्यक्ति ने पूछा, उनमें से एक मैन ने पूछा कि क्या वो जानता है कि जो डॉक्टर पोनोनर है उसकी ब्रैडरेथ पिल्स के बारे में, उसकी जो मीठी गोलियां हैं उनके बारे में. तो दिस एल्मिस्टिक्यू हैज़ टू एक्सेप्ट डिफीट. इस क्वेश्चन के जवाब में एल्मिस्टिक्यू कहते हैं कि मैंने तो हार मान ली, मैं नहीं जानता. एंड इन ट्रियम्फ द मैन डिस्पर्स. और जीत की खुशी के साथ में जो मैन है वो सारे डिस्पर्स हो जाते हैं. द नरेटर हैविंग गॉन होम एंड गॉन बैक टू बेड. जो नरेटर है वापस अपने घर पे चला जाता है और बेड पे जाता है. ड्रीम्ड दैट ही हैज़ डन सो. अवेक्स द फॉलोइंग मॉर्निंग. अगली सुबह जागता है. एंड डिसाइड दैट ही इज़ अनहैप्पी विद हिज ओन टाइम. और कहता है कि वो तो अपने जो उसका खुद का टाइम है इससे खुश नहीं है. एंड सर्कमस्टांसेस, इन सर्कमस्टांसेस वो हैप्पी नहीं है. एंड रिजॉल्व टू गो टू पोनोनर्स टू गेट एम्बाल्म्ड. और वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वो पोनोनर के पास में जाएगा. एम्बाल्म फॉर अ कपल 100 years. कि वो उसे एम्बाल्म कर दे, बॉडी को उसकी प्रिजर्व कर दे अ कपल 100 years के लिए. Thanks a lot.